السلام علیکم، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ کے چندر شیکھر راؤ تلنگانہ ریاست کے پہلے وزیر اعلیٰ، راج بھون میں حلف برداری، سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ پر سلامی۔ ٹی آر ایس کے منشور میں کیے گئے تمام وعدوں کو پورا کیا جائے گا، حلف برداری کے بعد وزیر اعلیٰ کا خطاب۔ راجیا اور محمود علی دو ڈپٹی چیف منسٹرز، محمود علی کو مالیے کا قلمدان۔ جملہ 11 کابینی وزراء کی حلف برداری، این نرسمہا ریڈی وزیر داخلہ اور ای راجندر وزیر فائنانس۔ تلنگانہ بھر میں نصف شب کو جشن، رقص اور آتش بازیاں، حیدرآباد روشنیوں سے معمور۔ کے سی آر حکومت فیملی پیکیج، کے سی آر خاندان کے 3 افراد کابینہ میں شامل، تلگو دیشم رکن اسمبلی ریونت ریڈی کا ریمارک۔ اور نئے ڈی جی پی انوراگ شرما اور نئے پولیس کمشنر مہندر ریڈی نے بھی جائزہ حاصل کر لیا۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ کے چندر شیکھر راؤ نے تلنگانہ کے پہلے چیف منسٹر کی حیثیت سے حلف لے لیا ہے اور بعد میں اپنے عہدے کا بھی جائزہ حاصل کر لیا۔ انہوں نے 11 ارکان کو کابینہ میں جگہ دی ہے اور محمود علی اور راجیا کو ڈپٹی چیف منسٹرز بنایا ہے۔ کے سی آر نے بدعنوانیوں سے پاک اور موافق غریب حکومت بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ پیش ہے تفصیلی رپورٹ۔ تلنگانہ کے پہلے وزیر اعلیٰ کے طور پر ٹی آر ایس سربراہ چندر شیکھر راؤ نے راج بھون میں حلف لیا۔ ان کے ساتھ کابینہ کے 11 ارکان نے بھی حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب راج بھون میں صبح 8:15 پر ہوئی۔ گورنر ای ایس ایل نرسمہن نے کے سی آر کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ నేను కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో, అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం గాని, పక్షపాతం గాని, రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని, శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। నేను కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని, నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। के सी आर के बाद मोहम्मद महमूद अली को हलफ दिलवाया गया, जिन्होंने उर्दू में हलफ लिया। करता हूँ तो बज़रिए कानून कायम किया गया है और मैं हिंदुस्तान के आला और सालिमत की हिमायत करूँगा और ये कि मैं रियासत तेलंगाना के वजीर की हैसियत से अपने फराज को ईमानदारी और दयानतदारी से अंजाम दूंगा। बादजा टी राजया, एन नरसिम्हा रेड्डी, ई राजेंद्र, पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, हरीश राव, पद्मा राव, महेंद्र रेड्डी, के टी आर, जोगू रामन्ना और जगदीश रेड्डी को भी हलफ दिलाया गया। हलफ दिलाने के बाद गवर्नर ने के सी आर को तेलंगाना के पहले चीफ मिनिस्टर के तौर पर मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हलफ लेने वाले तमाम नए वज़रा ने के सी आर से मुलाकात की और काबीना में जगह देने पर उनसे इजहार तशक्कुर किया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में साबिक़ वज़रा आला के अलावा साबिक़ रियासती वज़रा, साबिक़ स्पीकर, साबिक़ चीफ सेक्रेटरी, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजलिस के अरकान मुखन्नना और दूसरों ने शिरकत की। गौरतलब बात यह है कि काबीना में ख़वातीन को नुमाइंदगी नहीं मिली है। बताया जाता है कि काबीना में जल्द ही तौसी दी जाएगी।
इससे पहले चंद्रशेखर राव ने गन पार्क पर वाक़े तेलंगाना यादगार शहीदां पहुंचकर तेलंगाना के लिए जान की कुर्बानी देने वालों को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने 2 मिनट की खामोशी भी मनाई। इस मौके पर सरकारी सलामी भी दी गई। केसीआर की तकरीब हल्फ बर्दारी में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में मजलिसी अरकान मुखन्नना ने भी शिरकत की। बादअज़ां मीडिया से बातचीत करते हुए सदर मजलिस ने वज़ीर आला केसीआर को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि मजलिस तेलंगाना रियासत के लिए अवाम की फलाह व बहबूद के लिए किए जाने वाले इक़दामात की तायद करेगी और हुकूमत को मुमकिन ताउन फराहम करेगी। 29वीं नई रियासत तश्कील पाई है और उम्मीद करते हैं कि नई कैबिनेट जो चंद्रशेखर राव साहब की क़यादत में बनी गई है वो तेलंगाना के अवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करेगी और तेलंगाना एक नई रियासत, एक बेहतरीन रियासत का शुमार होगा मुस्तक़बिल में। और ख़ास तौर से शहर हैदराबाद में जो पीने के पानी का मसला है और जो बरक़ी क़िल्लत है उसको दूर किया जाएगा। हम अपनी तरफ से पूरा ताउन देंगे अपनी जमात से ताकि ये एक अच्छी रियासत बन सके जहाँ पर अमन हो और जहाँ पर हर तबके से इंसाफ मिलेगा। गवर्नर आंध्र प्रदेश ESL नरसिम्हन ने सुबह 6:30 पर तेलंगाना के गवर्नर के तौर पर हलफ लिया। राजभवन में मुनक़दा एक सादा तकरीब में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कल्याण ज्योति सेन गुप्ता ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। हल्फ बर्दारी के बाद चीफ जस्टिस ने उन्हें मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। गवर्नर ने बादअज़ां तेलंगाना अवाम को नई रियासत की तश्कील पर मुबारकबाद दी और इस उम्मीद का इजहार किया है कि केसीआर की हुकूमत तेलंगाना की तरक्की के लिए काम करेगी। इस दौरान तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया है। सेक्रेटरीट में जायजा लेने के बाद केसीआर ने सबसे पहले तेलंगाना हुकूमत के लोगों की फाइल पर दस्तखत किए। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए रियासती वज़रा N नरसिम्हा रेड्डी, महिंदर रेड्डी, पोचाराम श्रीनिवास, E राजेंद्र और हरीश राव ने कहा कि यह गैर रस्मी इजलास था जिसमें मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बदउनवानियों से पाक और मुआफ़िक गरीब अवाम हुकूमत का वादा किया है। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर यौम तेलंगाना की परेड की सलामी लेने के बाद अपने खिताब में वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि उनकी हुकूमत सियासी बदउनवानी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत 969 अफराद की कुर्बानियों और समाज के तमाम तबके के मुश्तरका जद्दोजहद की वजह से वजूद में आई है। केसीआर ने कहा कि हुसूल तेलंगाना के लिए की गई अदम तशद्दुद की तारीख रकम कर चुकी है। वज़ीर आला ने कहा कि TRS ने मंशूर में जो वादे किए थे उसे पूरा किया जाएगा। సాకారమైన ఈ శుభ సందర్భంలో రాష్ట్ర అవతరణ దినాన సమస్త తెలంగాణ ప్రజలకు నేను హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ఇది తెలంగాణ ప్రజల విజయం, ప్రజా ఉద్యమాల విజయం, తెలంగాణ అమరవీరుల త్యాగ ఫలం। तेलंगाना मुलाजिमीन से मुखातिब होते हुए केसीआर ने कहा कि मुलाजिमीन को खुसूसी इंक्रीमेंट दिया जाएगा और मरकजी मुलाजिमीन की ममासिल तनख्वाहें दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि तमाम मुलाजिमीन को हेल्थ कार्ड्स दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने ऐलान किया है कि आइंदा 5 सालों में दलितों, क़बाइलों, अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात की बहबूद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 50,000 करोड़ रुपए सिर्फ दलितों के लिए खर्च किए जाएंगे। केसीआर ने कहा कि हर गरीब खानदान को 125 गज पर मुश्तमल 2 कमरों वाला मकान फराहम किया जाएगा। केसीआर ने कहा कि OBC, SC, ST और अक़लियती बहबूद के महकमों के क़लमदान अपने पास रखेंगे। उन्होंने कहा कि 1 लाख तक के किसानों के कर्जे माफ़ किए जाएंगे। बरक़ी सूरत हाल पर वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि तेलंगाना को आइंदा 3 सालों में इजाफा बरक़ी पैदावार की रियासत में तब्दील किया जाएगा और तेलंगाना को मॉडल रियासत बनाया जाएगा। केसीआर ने कहा कि हुकूमत को सलाह व मशवरा देने के लिए तेलंगाना स्टेट एडवाइजरी काउंसिल तश्कील दिया जाएगा, जिसमें सहाफ़ियों के अलावा मुख्तलिफ शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियतों को शामिल किया जाएगा। चंद्रशेखर राव ने कहा कि हुकूमत जल्द ही नई सनती पॉलिसी को भी मुतारिफ करवाएगी ताकि तेलंगाना में सरमायाकारों को राग़िब किया जा सके और मुलाजिमतों के मौके पैदा हो सके। पेंडिंग ఉందో దాన్ని ఎక్స్‌పీడియేట్ చేసి ఇమిడియట్ గా వీలైనంత స్పీడ్ గా జెట్ స్పీడ్ తో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ కూడా చేస్తామని నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా। ఆ రూల్స్ అన్ని కూడా ఖచ్చితంగా సరళీకృతం కావాలి। మనల్ని చూసి భారతదేశంలో ఇతర రాష్ట్రాలు నేర్చుకోవాలి। మీరే ఆ రూల్స్ తయారు చేయాలి।
మీరు చేసిన రూల్స్ని ప్రభుత్వం ఆమోదిస్తే కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు హామీ ఇస్తా ఉన్నాను. మీతో నేనే వ్యక్తిగతంగా చర్చించి ఉద్యోగులకు ఉన్న సర్వీస్ రూల్స్ అన్నిటి కూడా మార్చేటువంటి ప్రయత్నం మనం చేద్దాం, సరళీకృతం చేసుకుందాం, ఉద్యోగులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కూడా కలగకుండా చూసుకుందామని మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఆశలతోని కోటి ఆశలతో తెలంగాణ మన వైపు చూస్తా ఉన్నది. మనకి ఎవరు కూడా బాసులు లేరు. ఎవరన్నా బాసులు మనకు ఉన్నారంటే అది తెలంగాణ ప్రజలు మాత్రమే అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీకు మనవి చేస్తూ तेलंगाना के वजीर आला ने परेड ग्राउंड्स में कौमी परचम भी लहराया। इस मौके पर नए काबीनी वुज़रा, तेलंगाना के डीजीपी अनुराग शर्मा और चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा भी मौजूद थे। टीआरएस रुकन पार्लियामेंट कविता ने कहा है कि अवाम से जो वादे किए गए हैं उसे पूरा किया जाएगा। सेक्रेटरीट में मीडिया से बातचीत करते हुए कविता ने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान एहतजाज के लिए वो सेक्रेटरीट आया करती थी, लेकिन आज सुर्ख कालीन पर इस्तकबाल को देखकर उनकी आंखें नम हुई हैं। कविता ने कहा कि नई रियासत तेलंगाना में कई चैलेंजेस है और उसका सामना करना टीआरएस के लिए कोई नई बात नहीं है। टीआरएस हुकूमत में खातून को नुमाइंदगी ना दिए जाने से मुतालिक कविता ने कहा कि जल्द ही काबीना में तोसी हो सकती है और खातून को नुमाइंदगी दी जाएगी। बहुत सारी चुनौतियाँ, उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी चुनौती तो ये है कि इरिगेशन वाटर हमारे खेतों में लेके आना बहुत बड़ी चुनौती है। उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप टैकल करते जाएंगे। केसीआर साहब को लोग जानते हैं, वो इज़ क्या बोलते हैं, बहुत या डायनामिक है। वो हमेशा ही चैलेंजेस को लेते हैं और कामयाब होते हैं। तो इस बार भी जो चैलेंज है, डेवलपमेंट का जो चैलेंज है, पक्का वो आगे बढ़ेंगे और उनके साथ पूरे तेलंगाना की आवाम है, तो उनके सपोर्ट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। केसीआर हुकूमत के लिए हलफ लेने वाले काबीनी वज़रा के कलमदानों का ऐलान कर दिया गया है। अक़लियती तबक़े से महमूद अली और दलित तबक़े से राजैया दोनों को नायब वज़ीर आला की हैसियत से मुक़र्रर किया गया है। महमूद अली वज़ारत मालिया की ज़िम्मेदारी भी संभालेंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने SC, ST, BC और अक़लियती बहबूद के अलावा तवानाई और GAD महकमे की वज़ारत को अपने पास ही रखा है। N नरसिम्हा रेड्डी को वज़ारत दाखिला, E राजेंद्र को फाइनेंस, हरीश राव को आबपाशी और उमूर मुक़न्नना P श्रीनिवास को ज़राअत, A राजैया को सेहत, KTR को IT और पंचायत राज, T पद्माराव को आबकारी, महेंद्र रेड्डी को ट्रांसपोर्ट, G जगदीश्वर रेड्डी को तालीम और जोगी रमना को जंगलात और सियाहत के कलमदान दिए गए हैं। पंचायत राज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रियासती वज़ीर के तारक रामाराव ने कहा है कि आवाम से जो वादे किए गए हैं उनको नई हुकूमत पूरा करेगी। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम तराशी करने वालों को इल्ज़ामात लगाने दीजिए, हम सिर्फ काम करेंगे। तारक रामाराव ने कहा कि आवाम ने जो जिम्मेदारी उन्हें दी है उसको पूरी तरह निभाने की कोशिश की जाएगी। हैदराबाद शहर के तहफ़्फ़ुज़ और उसके वक़ार में इजाफ़े के अलावा तेलंगाना के नौजवानों को रोज़गार और आला तालीम भी फराहम की जाएगी। बहुत खर्च करती है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे, आज लोगों ने, तेलंगाना की आवाम ने बहुत ही प्यार और मोहब्बत से और हम पे एक जिम्मेदारी उन्होंने रखा 5 साल के लिए। 5 साल के बाद हमारा प्रोग्रेस कार्ड जो है उसको रेटिंग जनता देगी और हमारे जिगरी पार्टी जो भी उनको कहना है कहने दे, हम अपना काम करेंगे और हमारा काम जो है सभी को उत्तर देगा। यही रहेगी कि वेलफेयर और डेवलपमेंट साथ ही साथ लेके चलेंगे और पूरी तरह से जो वादे हमने किए मैनिफेस्टो में उसको निभाने की कोशिश करेंगे। और शहर हैदराबाद जो ऐसा एक शहर है जिसका सबको नाज है, हमें इसको प्रोटेक्ट करना है, इसका इमेज इसके इमेज को भी महफूज करना है। अलहदा तेलंगाना तहरीक के रूह रवां के चंद्रशेखर राव, जिन्होंने तवील सियासी जद्दोजहद के बाद हुसूल तेलंगाना में अपना रोल अदा किया है, अब तेलंगाना के वज़ीर आला बन चुके हैं। समाज का हर तबका उनसे उम्मीदें वाबस्ता किए हुए। केसीआर के सामने चैलेंजेस भी कई हैं और अब ये देखना है कि वो किस तरह से इन चैलेंजेस का सामना करते हुए आवाम की तवक्कुआत को पूरा करते हैं। पेश है केसीआर के तवील सियासी सफ़र पर हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फ़िरोज़ की ये रिपोर्ट। तेलंगाना तहरीक का जिक्र आते ही केसीआर का नाम जुबां पर आ जाता है। कलवा कुंतला चंद्रशेखर राव 17 फरवरी 1954 को सिद्दीपेट जिले के चिंता मटका देहात में पैदा हुए थे। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से तेलुगु लिटरेचर में MA किया। उन्हें उर्दू और अंग्रेजी जुबान पर भी अबूर हासिल है।
केसीआर के आबा व अजदाद का ताल्लुक साहली आंध्रा के देहात कलवा कुंतला से है। तालिबे इल्मी के दौर से ही उन्हें सियासत से दिलचस्पी थी। 1970 में उन्होंने संजय गांधी की क़यादत में यूथ कांग्रेस में कदम रखा और फिर साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की क़यादत में भी काम किया। उन्हें मेदक ज़िले की यूथ कांग्रेस का सदर भी मुकर्रर किया गया था। 1983 में वो NTR की मकबूलियत से मुतासिर होकर तेलुगु देशम में शामिल हुए। इसी साल उन्होंने तेलुगु देशम के टिकट पर इंतखाब भी लड़ा, लेकिन शिकस्त का सामना करना पड़ा। फिर 1985 से 1999 तक वो मुसलसल 4 असम्बली इंतखाबात में सिद्दीपेट असम्बली हल्के से मुंतखब हुए। इस दौरान वो डिप्टी स्पीकर के ओहदे पर भी फायज रहे। NTR के बाद तेलुगु देशम के मौजूदा सदर चंद्रबाबू नायडू से इख्तिलाफात के बाद उन्होंने तेलुगु देशम से अलहदगी अख्तियार कर ली और फिर तेलंगाना तहरीक में जान डालने का बीड़ा उठाते हुए नए सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया। 27 अप्रैल 2001 को उन्होंने TRS की बुनियाद डाली और 6 दिन के अंदर ही जय तेलंगाना के नारे को बुनियाद बनाकर सिद्दीपेट के मंडल परिषद पर कब्जा कर लिया। इस दौरान उन्होंने तेलंगाना तहरीक को तेलंगाना के 10 अजला में सरगर्म करने का भी आगाज़ किया और अपने मकसद में कामयाबी भी हासिल की। साल 2004 में कांग्रेस के साथ मुफाहमत करते हुए TRS ने असम्बली इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल की, लेकिन तेलंगाना की अदम तश्कील पर वो 2009 में कांग्रेस से दूर हो गए और तेलुगु देशम की ज़ेर क़यादत महाकुटुंबी का हिस्सा बन गए। इससे पहले तेलंगाना की हिमायत में TRS के तमाम अवामी नुमाइंदों ने अपने इस्तीफ़े भी पेश कर दिए थे। इस दौरान हुए ज़िमनी इंतखाबात में TRS को ख़ास कामयाबी हासिल नहीं हुई। 2009 के इंतखाबात में भी उसे कोई ख़ास कामयाबी हासिल नहीं हुई। 2009 में जब YSR की फ़िज़ाई हादसे में मौत हुई तो आंध्र प्रदेश की सियासत में एक नई तब्दीली का आगाज़ हुआ और इसी दौरान KCR ने फिर से तेलंगाना तहरीक के लिए अपनी सरगर्मियों का आगाज़ किया। सदारती हुक्मनामे से 14F को हज़फ करने का मुतालबा करते हुए KCR ने 29 नवंबर 2009 में मरण व्रत का आगाज़ किया। उस वक्त रियासत के वज़ीर आला के रोशैया ने KCR की भूख हड़ताल को ख़त्म करने के लिए कई इजलास भी तलब किए। उधर पार्लियामेंट में भी KCR से भूख हड़ताल ख़त्म करने की अपील की गई, जिसके बाद KCR ने उस अपील को कबूल करते हुए अपनी भूख हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान किया। लेकिन उनके इस फैसले से तलबा में बरहमी फैल गई और KCR की मुखालिफत में शिद्दत पैदा हो गई। हालात को बदलते देखकर KCR ने, जिन्हें निम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, अपनी भूख हड़ताल जारी रखने का फैसला किया। इस दौरान दिल्ली की UPA हुकूमत तेलंगाना की सूरत हाल को लेकर परेशान हो गई और 9 दिसंबर 2009 को अलहदा तेलंगाना की तश्कील का अमल शुरू करने का ऐलान किया। इस ऐलान से KCR तेलंगाना में हीरो बन गए और TRS को अवामी मकबूलियत की बुलंदी पर पहुंचा दिया। उधर सीमांध्रा में अवामी एहतजाज के बायस UPA हुकूमत ने अपना फैसला बदल दिया और मसले की यकसोई के लिए मुशावरत का ऐलान करते हुए श्री कृष्णा कमेटी के क़याम का ऐलान किया। उधर TRS मरकजी हुकूमत के फैसले के खिलाफ फिर से एहतजाज पर उतर आई और 2014 तक सियासी नशेब फराज के कई वाक़यात भी पेश आए। तेलंगाना की अदम तश्कील पर कांग्रेस और तेलुगु देशम के कई कायदीन TRS में शामिल हो गए, जिससे TRS इलाके की एक मजबूत जमात बन गई। तेलंगाना और सीमांध्रा के हालात को देखते हुए कांग्रेस की ज़ेर क़यादत UPA हुकूमत ने बिलाखिर अलहदा तेलंगाना की तश्कील का ऐलान कर दिया, लेकिन कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि TRS कांग्रेस में जम हो जाएगी, लेकिन KCR ने अपनी पार्टी को कांग्रेस में जम करने से इनकार करते हुए कांग्रेस की आला क़यादत को मायूस कर दिया। फरवरी साल 2014 में पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल मंजूर कर दिया गया और जब आम इंतखाबात का ऐलान हुआ तो कांग्रेस इस खुशफहमी में मुब्तला थी कि उससे तेलंगाना में फ़ायदा होगा, लेकिन TRS ने 63 असम्बली की नशिस्तें हासिल करते हुए तेलंगाना के इख्तिदार पर कब्जा कर लिया। KCR की क़यादत में पार्टी के 11 लोकसभा अरकान भी मुंतखब हुए। साल 2001 से KCR ने जो तहरीक शुरू की थी, अब 13 साल बाद उन्हें इसका सिला मिला है। अलहदा तेलंगाना रियासत वजूद में आ चुकी है और वो रियासत के पहले वज़ीर आला बन चुके हैं।
सुनहरा तेलंगाना और समाजी इंसाफ का जो नारा केसीआर ने दिया था, अब उसे पूरा करने का वक्त आ चुका है। समाज के हर तबके को केसीआर से उम्मीदें वाबस्ता हैं। देखना है कि वो किस तरह मौजूदा हालात और चैलेंजेस का सामना करते हुए अवाम की तवक्कुआत को पूरा करेंगे। सियासी जमातों के दफातर और मुख्तलिफ इलाक़ों में भी जश्न तासीस तेलंगाना मनाया गया। सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर सभी ने तेलंगाना का ख्वाब हकीकत बनने में खुशियां मनाई। मुल्क की 29वीं रियासत तेलंगाना के वजूद में आने के साथ ही रात से शहर हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के तमाम अजला में जश्न मनाया गया। रात के 12 बजते ही तेलंगाना के हामियों ने नेकलेस रोड के अलावा शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर खुशियों का इजहार किया और आतिशबाजी करते हुए तेलंगाना की तश्कील पर खुशियों का इजहार किया। कल रात तेलंगाना में सदर राज का खात्मा हो गया। सियासी सतह से बालातर होकर तेलंगाना तश्कील का जश्न हर कोई मना रहा है। यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर शहर हैदराबाद को दुल्हन की तरह सजाया गया। जगह जगह गुलाबी परचम लगाए गए हैं और बरक़ी खमखे भी नस्ब किए गए हैं। असेंबली के अलावा तारीखी इमारत चार मीनार को भी बरक़ी खमखों से सजाया गया है। तेलंगाना के हामियों में यौम तासीस के सिलसिले में काफ़ी जोश व खरोश पाया जाता है। निज़ामाबाद हो या करीमनगर, हर जगह तेलंगाना के उसूल के बाद जश्न का माहौल है। सरकारी सतह पर तमाम जिला कलेक्टर्स ने जश्न यौम तासीस का एहतमाम किया। तेलंगाना जेएसी की जानिब से रात 8 बजे गन पार्क पर तेलंगाना के लिए जान देने वालों को खराज पेश किया गया, जिसके बाद जश्न का आगाज हुआ। वहीं तेलुगु देशम और कांग्रेस पार्टी की जानिब से भी मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स मुनक़द करते हुए जश्न मनाया गया। शहर में तारीखी चार मीनार के पास भी निस्फ शब को जश्न का एहतमाम किया गया। हुकूमत की तरफ से भी 10 अजला की तारीखी इमारतों को बरक़ी खमखों के जरिए सजाया गया। सेक्रेटरीट के दरख्तों को भी खमखों से सजाया गया। तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में भी मुनक़िद की गई। तेलंगाना के सदर प्रदेश कांग्रेस पुनरा लक्ष्मण ने इस मौके पर खिताब करते हुए नई रियासत तेलंगाना के क़याम और उसकी यौम तासीस पर तेलंगाना के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत के अवाम के ख्वाब को सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने पूरा किया है। उन्होंने इसके लिए सोनिया गांधी से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने अपने किए हुए वादे को पूरा किया है और तेलंगाना के अवाम सोनिया गांधी के एहसानमंद है। इस मौके पर दामोदराज नरसिम्हा, मोहम्मद अली शब्बीर, वी हनुमंत राव, अंजन कुमार यादव के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। तेलंगाना यौम तासीस तेलंगाना की तकरीब तेलुगु देशम पार्टी के हेडक्वार्टर्स एनटीआर भवन में भी मुनक़िद की गई। इस मौके पर पार्टी सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू ने परचम लहराया। उन्होंने अपने खिताब में तेलंगाना के अवाम, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और उनके काबीनी वज़रा को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नई हुकूमत पसमानदा तबक़ात के साथ मुकम्मल इंसाफ करेगी। उन्होंने तेलंगाना के लिए जान की कुर्बानी देने वालों को भी खराज पेश किया। उन्होंने तेलंगाना के लिए जद्दोजहद करने वाले तेलुगु देशम के कारकुनों को भी मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर तेलंगाना के तेलुगु देशम कायदीन भी मौजूद थे। बीजेपी के दफ्तर में यौम तासीस तेलंगाना मनाया गया। सिकंदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने तमाम सियासी जमातों की जानिब से यौम तासीस तेलंगाना तक़रीब मनाने को खुश आइन करार दिया है। तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने तेलंगाना के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने तेलंगाना के लिए जान की कुर्बानी देने वालों को खिराज पेश किया। पार्टी के दीगर कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। जहां रियासत के मुख्तलिफ इलाकों और मुकामात पर जश्न मनाया गया और लोगों ने आपस में खुशियां बांटी, वहीं बाज़ मुकामात पर यह खुशियां तकलीफ दे भी साबित हुई। मिसाल के तौर पर नीलोफर हॉस्पिटल में TJAC की जानिब से मनाए गए जश्न में हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ ने मरीजों को छोड़कर रक्स की महफिल सजाई थी। बुलंद आवाज से गाने लगाए जा रहे थे और केक काटा जा रहा था। हॉस्पिटल के अहाते में जहां हॉर्न बजाना भी मना होता है, वहां पर हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट और MRO से लेकर तमाम स्टाफ ने काफी शोर शराबा किया। हालांकि यही जश्न हॉस्पिटल के अहाते के बाहर भी मनाया जा सकता था। वायएसआर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में भी यौम तासीस तेलंगाना तकरीब का इनेकाद अमल में आया। YS जगनमोहन रेड्डी ने कौमी परचम लहराया और तेलंगाना अवाम को मुबारकबाद पेश की है।
آندھرا پردیش کی تقسیم کے ساتھ پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں میں تبدیلیوں کا بھی سلسلہ شروع ہوا ہے۔ آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے لیے نئے ڈی جی پیز اور حیدرآباد کے لیے نئے پولیس کمشنر نے اپنے اپنے عہدوں کا جائزہ لے لیا۔ تلنگانہ کے پہلے ڈی جی پی کے طور پر انوراگ شرما نے اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ تلنگانہ کے پہلے چیف منسٹر KCR نے انہیں نئی ریاست تلنگانہ کا پہلا پولیس سربراہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے اپنے عہدے کا جائزہ بھی حاصل کر لیا ہے۔ اس موقع پر انہیں مختلف عہدیداروں نے بھی مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر 4 TV سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ تلنگانہ حکومت کے شکر گزار ہیں جس نے انہیں یہ موقع فراہم کیا ہے۔ وہ تلنگانہ میں امن و قانون کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کام کریں گے۔ ڈیوائڈ ہونے کے بعد اور آپ کا پروموشن ایسے میں کیسا لگ رہا ہے؟ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آج جب تلنگانہ بنا ہے اور اس کے لیے یہ جو ہے عہدہ دینے کے لیے مجھے چنا گیا ہے، اور میں تلنگانہ کی گورنمنٹ کا بہت بہت آبھاری ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم لوگ ایک اچھی پولیس فورس، ایک پیپل فرینڈلی پولیس فورس، ایک ریسپانسبل پولیس فورس ہم اسٹیٹ کو دے پائیں گے۔ سر 23 ڈسٹرکٹ جا کے ابھی 10 ڈسٹرکٹ کو آپ کو کنٹرول کرنے کا موقع ملا ہے، تو ایز اے IPS آفیسر آپ کیسے کریں گے 10 ڈسٹرکٹ کو آپ ایزی کنٹرول کر پائیں گے؟ انشاءاللہ۔ حیدرآباد کے کمشنر پولیس کی حیثیت سے مہندر ریڈی نے پیر کو اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا ہے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے مہندر ریڈی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے یوم تاسیس تلنگانہ کی تقریب کے موقع پر پولیس محکمے کو مزید فعال اور متحرک بنانے کے لیے ممکنہ مدد کا تیقن دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمے کو درپیش مسائل اور ضرورتوں سے متعلق وہ اپنی تجاویز حکومت کو پیش کریں گے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ آنے والے سالوں میں بھی حیدرآباد میں امن برقرار رہے گا اور پولیس کو عوام کا تعاون حاصل ہوتا رہے گا۔ اس موقع پر ڈی جی پی انوراگ شرما اور دیگر اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ میں آج حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر چارج لیا ہوں۔ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے، جو بھی ان کا پورا لوگوں کا سیفٹی اور سیکیورٹی دیکھ بھال کرنے کے لیے جو کچھ چاہیے حیدرآباد سٹی پولیس سے پورا ایفرٹ کر کے سب لوگ پورا سیف اینڈ سیکیور رکھنے کے لیے ہمیشہ کوشش کریں گے۔ تیلگو دیشم رکن اسمبلی ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ KCR نے جائیداد کی تقسیم کی طرح قلمدانوں کی تقسیم کی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ TRS سربراہ نے دلتوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ گریجنوں کو 12% تحفظات کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن ایک کو بھی کابینہ میں شامل نہیں کیا گیا۔ تیلگو دیشم رکن اسمبلی نے کہا کہ TRS حکومت کی کابینہ میں KCR خاندان کے 3 افراد کو شامل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محبوب نگر سے پارٹی کے 7 ارکان اسمبلی منتخب ہوئے ہیں، لیکن ضلع کو خاطر خواہ نمائندگی نہیں دی گئی۔ ریونت ریڈی نے KCR حکومت کی کابینہ کو فیملی پیکیج سے تعبیر کیا ہے۔ MRPS کے کارکنوں نے TRS سربراہ کے چندرشیکھر راؤ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے یونیورسٹی کیمپس سے ریلی نکالنے کی کوشش کی، جسے پولیس نے ناکام بنا دیا۔ احتجاجی MRPS کے کارکن راج بھون جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ پولیس نے NCC گیٹ کے پاس ہی انہیں روک دیا۔ اس موقع پر پولیس اور احتجاجیوں کے درمیان بحث و تکرار بھی ہوئی۔ MRPS کارکنوں نے اپنے دفتر کے پاس تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کا علامتی پتلا بھی جلایا۔ نیو ملک پیٹ میں آلودہ پانی کی سربراہی کی شکایت پر رکن اسمبلی احمد بلالہ کی نمائندگی کے بعد مرمتی کام کا آغاز عمل میں آیا ہے۔ مقامی عوام نے شکایت کی تھی کہ گزشتہ چند دنوں سے حلقے میں آلودہ پانی سربراہ کیا جا رہا ہے۔ رکن اسمبلی نے فوری متعلقہ کارپوریٹر SA حق نذیر کو عہدیداروں کے ساتھ متاثرہ علاقے کا دورہ کرنے کی ہدایت دی۔ پیر کو مجلسی کارپوریٹر نے عہدیداروں کے ساتھ دورہ کرتے ہوئے تفصیلات سے انہیں واقف کروایا، جس کے بعد مرمتی کاموں کا آغاز کر دیا گیا۔ مجلسی کارپوریٹر نے بتایا کہ جلد ہی یہ کام مکمل کر لیے جائیں گے۔ جدید ملک پیٹ کے علاقے میں مرمتی کام کے دوران ایک مزدور برقی شاک لگنے سے فوت ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق محبوب نگر کا ساکن سدھاکر روزگار کی تلاش میں حیدرآباد آیا تھا
اور وہ ملکپیٹ میں کام کر رہا تھا۔ چادر گھاٹ پولیس نے ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ چندران گٹا کے علاقے بارکس میں ایک 35 سالہ آٹو ڈرائیور کا قتل کر دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ مقتول شیخ بابا شراب کا عادی تھا اور وہ روزانہ پی کر گھر آتا، ہنگامہ کھڑا کرتا اور اہل خانہ کو تنگ کیا کرتا تھا۔ روز روز کی اس پریشانی سے تنگ آ کر مقتول کی ماں نے ہی چاقو سے اپنے بیٹے کا گلا کاٹ دیا۔ چندران گٹا پولیس اس واقعے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے۔ مدینہ چوراہے کے پاس واقع 2 متصلہ دکانوں سے تقریباً 75,000 روپے نقد رقم کے علاوہ دوسری اشیاء کا سرقہ کر لیا گیا۔ متاثرہ دکانوں کے مالکین نے میڈیا کو بتایا کہ سارقوں نے ان کی دکان سے متصل عمارت کی تعمیر کے سلسلے میں باندھے گئے گوا کی مدد سے ان کی دکان میں داخل ہو کر سرقے کی واردات انجام دی۔ انہوں نے بتایا کہ ایک دکان کے کیش باکس سے قریب 60,000 روپے کا سرقہ کیا گیا، جبکہ دوسری دکان سے قریب 15,000 روپے نقد رقم کے علاوہ دوسری اشیاء چرا لی گئیں۔ ملکپیٹ ریلوے اسٹیشن پر پیش آئے ایک افسوسناک واقعے میں ایک خاتون نے ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق وجے واڑہ کی ساکن 35 سالہ نکیتا مالی مسائل کا شکار تھی۔ وہ اپنے 2 بچوں 13 سالہ گیتا کماری اور 11 سالہ چیتن کے ساتھ ٹرین کی پٹریوں پر سو گئی تھی۔ ٹرین کی آواز سن کر دونوں بچے نیند سے بیدار ہو گئے اور فوری پٹریوں سے ہٹ گئے۔ دونوں بچے تو بچ گئے لیکن ان کی ماں ہلاک ہو گئی۔ گیتا اور چیتن زخمی ہو گئے ہیں، انہیں علاج کے لیے دواخانہ منتقل کیا گیا ہے۔ آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ کے چندر شیکھر راؤ تلنگانہ ریاست کے پہلے وزیر اعلیٰ، راج بھون میں حلف برداری، سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ پر سلامی۔ ٹی آر ایس کے منشور میں کیے گئے تمام وعدوں کو پورا کیا جائے گا، حلف برداری کے بعد وزیر اعلیٰ کا خطاب۔ راجیا اور محمود علی 2 ڈپٹی چیف منسٹرز، محمود علی کو مالیے کا قلمدان۔ جملہ 11 کابینی وزراء کی حلف برداری، این نرسمہا ریڈی وزیر داخلہ اور ای راجندر وزیر فائنانس۔ تلنگانہ بھر میں نصف شب کو جشن، رقص اور آتش بازیاں، حیدرآباد روشنیوں سے معمور۔ کے سی آر حکومت فیملی پیکیج، کے سی آر خاندان کے 3 افراد کابینہ میں شامل، تلگو دیشم رکن اسمبلی ریونت ریڈی کا ریمارک۔ اور نئے ڈی جی پی انوراگ شرما اور نئے پولیس کمشنر مہندر ریڈی نے بھی جائزہ حاصل کر لیا۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ فی امان اللہ۔